Welcome to Yes Sampat Educator. So hello everyone, welcome to Yes Sampat Educator. So today we'll discuss about the 13th November 2022 and its हिंदू न्यूज़पेपर. तो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे क्या है ये पेंडिंग केसेस, पेंडिंग पे पेंडिंग इज ए क्लियर, भारत में लंबित मामले. सो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर लेक्चर, आई वांट टू डिस्कस दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स कमांड मिशन टेस्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन नेवी INET, Air Force Group X and Y, Army, UPSC Civil Services Examination, and if we are also preparing for the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B. So don't worry, batch is launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619 and you can just follow me in the Instagram, in the YouTube and in the Facebook also. You can just enroll in this kind of the particular courses, and online platform is available over here. Okay. So before we're going to start, I want to introduce myself. So once again, Jai Hind one and all who are watching this kind of the particular video. This is Yes Sampat. By profession I am an engineer and by passion I am an educator. So चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं. You can just follow me in the Facebook, YouTube and in the Instagram also. Okay. So let us start with the first question. First question is about the which country launched the Orion spacecraft. So correct answer is about the USA. तो यहाँ पर USA जो है उसका correct answer रहेगा. Let us discuss about the next question, and this kind of the particular question you have to give the answer in the comment section over here. Okay, so which state is the host of International Lusophone Festival? So there are the 4 options over here, so you can give me correct answer in the comment section. So first option is the Maharashtra, second one is the Goa, third one is the Gujarat and fourth one is the Assam. You can just enter the enter the correct answer in the comment section. Okay, so let us start with the first article. So guys, I want to tell you that यहाँ पर जब भी एक ये आर्टिकल निकल कर आया है जहां पर आप लोग ये पहले देख सकते हैं कि हाँ, नाडो लेपिड अब्यूज्ड इनविटेशन टू IFFI पैनल इजरायली एनवॉय. ओके, तो यहाँ पर अगर उसके बारे में यहाँ पर बातचीत करूँ तो नाडो लेपिड जो है एक फिल्म मेकर है, उन्होंने यहाँ पर कश्मीर फाइल के ऊपर ये चीज़ कही थी और यहाँ पर ये चीज़ के बारे में बातचीत किया था कि कश्मीर फाइल एज ए प्रोपोगेंडा. ठीक है, तो यहाँ पर ये IFFI जो है यहाँ पर इन भाई साहब को इनवाइट किया गया था, नाडो लेपिड को जो एक फिल्म मेकर है, पर फिर भी यहाँ पर उन्होंने कश्मीर फाइल को क्रिटिसाइज किया और एक प्रोपोगेंडा के तौर पर यहाँ पर ये चीज़ कही. तो ये जो है इजराइल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, नाडो लेपिड जी. पर बाद में ये सिचुएशन को संभालते नेरो गिलोन जो इजराइल के एम्बेसडर है, उन्होंने ये सिचुएशन को संभाला था और रिलेशन को संभालने की यहाँ पर बातचीत करी थी. इज ए क्लियर, और उन्होंने इसके भी आप में सॉरी भी कहा था. इज ए क्लियर. सो इन एन ओपन लेटर टू Mr. Lapid, the Israeli envoy Nero Galon equated the film on the exile of the Pandit community from the Kashmir Valley with Steven Spielberg's Holocaust classic Schindler's List and the urged the filmmaker to justify his criticism on the film. तो भारत का जो कल्चर है, भारत के कल्चर के अंदर जो गेस्ट है वो भगवान के बराबर माना जाता है, पर यहाँ पर उन्होंने इनवाइट किया था, पर यहाँ पर उन्होंने इस तरीके की फिल्म को क्रिटिसाइज़ किया था और इंडियन इन्विटेशन के तौर पर यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें करी थी वो काफ़ी तक गलत मानी जा सकती है. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है. सो IFFI Goa as well, the trust, respect and warm hospitality they have bestowed on you, Mr. Gillon said over here. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझनी है ये एक्चुअली था क्या. तो यहाँ पर देखिए प्रीलिम्स IFFI जो है काफ़ी हद तक पूछा जा सकता है, ये टॉपिक है नाडो लेपिड अब्यूज इन्विटेशन टू IFFI पैनल इजरायली इन्वॉल्व. ओके, इन्वॉय. तो यहाँ पर जो न्योर गैलोन जो है उन्होंने ये ओपन लेटर में कहा कि यहाँ पर नाडो लेपिड ने इस तरीके की क्रिटिसिज्म किया था कश्मीर फाइल्स के रिगार्डिंग. सो इट इज़ नॉट इन हिब्रू बिकॉज आई वांटेड अवर इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये चीज़ों को समझे. इट इज़ ऑल्सो रिलेटिवली लॉन्ग, सो आई विल गिव यू द बॉटम लाइन फर्स्ट. यू शुड बी एशेम्ड, हियर इज़ वाई. ठीक है, तो यहाँ पर एम्बेसडर ने ये चीज़ कहकर ये जो रिलेशन टूट
सकते थे उसको बचा लिया, ठीक है। और रेन मैल्का ने यहाँ पर लिखा था, आई स्ट्रांगली कंडेम एंड डिसप्रूव नाडो लेपिड्स कमेंट्स, दिस इज़ नॉट द इजरायली पोजीशन, आई स्टैंड बाय माय इंडियन फ्रेंड्स टुडे एंड एवरी डे, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल आया है उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। पर यहाँ पर देखिए जो द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया था उसके हिसाब से अगर ये कहें कि ये जो भाई साहब है वो एक्चुअली कौन है, सो दैट इज़ अबाउट दी नेरोर गिलोन, इज इट क्लियर? सो दैट इज़ अबाउट दी नेरोर गिलोन। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, उसका फोटो भी देख सकते हैं। यस वन, दिस वन, ओके, दिस वन, यस, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जिस तरीके का आप लोगों ने यहाँ पर थंबनेल देखा था गाइज, आई वांट टू टेल यू दैट दिस वन, ओके। सो पेंडिंग केसेस, भारत में लंबित मामले, ठीक है, पेंडिंग पे पेंडिंग। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक दोस्तों आर्टिकल आया है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, पेंडिंग केसेस ओवर हियर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आर्टिकल निकल कर आया है वो ये है, ठीक है। तो हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं उनका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, और यहाँ पर मैं भी आपको बता दूंगा, DY चंद्रचूड़ सर जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। डबलिंग कोर्ट स्ट्रेंथ वुड नॉट एंड पेंडेंसी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस है तो 33 हमारे पास जजेस की पैनल है, ठीक है, उसमें से अगर हम लोग डबल कर देंगे, 66 भी कर देंगे, तो भी हमारे पास जो है केसेस जो है ख़त्म नहीं होंगे। तो ये एक जुडिशरी ओवर बर्डनड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, सेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सर। ही पॉइंट्स आउट दैट इट इज़ ऑलरेडी डिफिकल्ट टू फाइंड गुड लॉयर्स टू फिल जुडिशियल वैकेंसीज इन हाई कोर्ट, ठीक है। तो हमें जो अच्छे लॉयर है वो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर जो जुडिशियल वैकेंसीज है खाली हो भी है, तो क्या है, हमें अच्छे लॉयर नहीं मिल पाते, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत की है। पर आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर हम लोग ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग द पेंडिंग केसेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस विल नॉट डेमोलिश द पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ द पेंडेंसी, that is already difficult finding good lawyers to accept the whole to bench in the high courts also। तो यहाँ पर सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन की बात हम पर बातचीत की जा रही है, पर ये चीज़ जो है काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट मानी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी यही कहा कि अगर हम लोग जज की संख्या डबल भी कर देते हैं तो भी हमें यहाँ पर चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इज इट क्लियर? अभी यहाँ पर देखिए जो अमेरिका की बात करें, यहाँ पर देखिए, द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हियर लॉयर्स ऑन वेदर यू शुड एडमिट अ केस फॉर हियरिंग, द यूके सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स विच 180 केसेस दे हैव टू हियर, ठीक है। तो ये सब सारे केसेस नहीं पहले लेते, पहले यूके जो है वो डिसाइड करता है, यूके का सुप्रीम कोर्ट के 180 केस में से कौन से केस लेने हैं, ओके। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में, पेंडिंग केसेस। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, भारत के अंदर पेंडेंसीज ऑफ केसेस इन इंडिया, ठीक है। तो ओवर 4.7 करोड़ केसेस जो है अब तक कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, ठीक है। और ये डिफरेंट लेवल ऑफ जुडिशरी की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जुडिशरी के हर एक लेवल के अंदर हर एक तरीके के केसेस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ऑलमोस्ट 87.4% जो है सब ऑर्डिनेट के अंदर पेंडिंग है, कोर्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, 12.4% हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जबकि 1,82,000 केसेस जो है वो 30 साल से पेंडिंग, 30 साल या उससे भी ज़्यादा सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या कहना है? So according to the National Judicial Data Grid NJDG के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, उसके हिसाब से यहाँ पर कहा गया है कि 5.88 लाख केसेस जो है पेंडिंग है बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। और उसके बाद हम बॉम्बे हाई कोर्ट, और उसके बाद 1.14 लाख जो फ्रेश केसेस है वो जो लास्ट 1 ईयर से पेंडिंग है, और 16,000 से भी ज़्यादा क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, करीब 10 साल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितने सारे केसेस जो है अभी तक हमें देखने को मिल सकते हैं जो पेंडिंग है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं कि भाई ये सिचुएशन आने का कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ओके। सबसे पहली चीज़ कि ओवरऑल शॉर्टेज ऑफ द जजेस, इज इट क्लियर, हाई कोर्ट के अंदर, भारत के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो
लेक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 5000 वैकेंसीज जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अगेंस्ट। यहाँ पर टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ जो है सिर्फ और सिर्फ कितनी है 20, टोटल स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ पर 5000 के आसपास ही स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 24,490 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अवेबिलिटी कितनी है 5000 की, ठीक है। उसके बाद कोरोना वायरस जब भी पेंडेमिक चला था तभी भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर कॉलेज का यहाँ पर माहौल देखने को मिला था। अगर यहाँ पर मैं नई केसेस के बारे में बात करूँ सो कोर्ट्स वेंट डिजिटल बट विद द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन इन प्लेस स्लोअर डिस्पोजल रेट रिजल्टेड इन मोर पेंडिंग केसेस ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एक तो कोरोना पेंडेमिक का पॉइंट। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट जो है हैज़ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल सीट, ओके, जिसका मुंबई के अंदर हम लोग कह सकते हैं उसकी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल सीट है। साथ ही साथ यहाँ पर जो औरंगाबाद के अंदर बेंचेस है और नागपुर के अंदर बेंचेस है, गोवा के अंदर बेंचेस है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझनी रहेगी। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं कि इट इज़ करेंटली फंक्शनिंग विद दी 57 जजेस इंक्लूडिंग दी 48 परमानेंट जजेस एंड 9 एडिशनल वंस, ठीक है। जिसके अंदर अगर सेंक्शन स्ट्रेंथ की बात करूँ तो 94 है और सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद ये जो सारी के सारी सिचुएशन है, वी कैन से दैट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर कमिंग रिटायरमेंट एंड एलिवेशंस द नंबर विल फॉल फर्दर। उसके बाद यहाँ पर रिटायरमेंट होगी तो ये नंबर फिर से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि अभी हम लोग कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये याद रखिए कि स्पीडी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ओके। यहाँ पर जजेस की जो अपॉइंटमेंट हो वो काफ़ी हद तक जल्दी हो जाए, ठीक है। बाय नॉट अपॉइंटमेंट जजेस द गवर्नमेंट इज डिप्रीविंग कॉमन पर्सन्स ऑफ जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जस्टिस अगर डिले हुआ तो जस्टिस डिनाई भी हो सकता है। सो देयर इज़ अर्जेंट नीड टू इम्प्रूव, ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। सो देयर इज़ अर्जेंट नीड टू इम्प्रूव द जज टू पॉपुलेशन रेशियो टू रिड्यूस वर्कलोड ऑफ दिस पर्टिकुलर जजेस, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके की पॉपुलेशन है जज टू पॉपुलेशन के हिसाब से जो रेशियो बनता है उसके हिसाब से यहाँ पर जज साहब का जो वर्कलोड हो रिड्यूस हो उस तरीके का कामकाज करना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर गाइडलाइन जो है पारित करनी चाहिए, जैसे कि सेंटर हैड सजेस्टेड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मेजर्स लाइक द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट के अंदर जो वर्किंग डेज है उसको हमें बढ़ा देना चाहिए। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा फास्ट ट्रैक कोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इंडियन कोर्ट एंड ट्राइबल सर्विस ICTs जो है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। सो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर कोर्ट सिस्टम, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग ई प्लेटफॉर्म जो है ना, ये ई प्लेटफॉर्म के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सो इम्प्रूव जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू दिस पर्टिकुलर यूज़ ऑफ ई प्लेटफॉर्म्स द एंड सिटिंग अप ऑफ मोर कोर्ट्स, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग ई प्लेटफॉर्म अगर रखा तो हम लोग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो है सॉल्व करने की कोशिश कर पाएंगे। और उसके हिसाब से गवर्नमेंट को ये पोर्टल बनाना चाहिए। सो दैट इज़ कॉल्ड ई कोर्ट्स नेशनल पोर्टल, ई कोर्ट्स गवर्नमेंट, ठीक है, जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अधीन काम कर सकता है और यहाँ पर उनका लॉन्चिंग हो चुका है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि स्ट्रेंथन द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब यही है कि जब भी हम लोग कोई इस तरीके के मोड को यूज़ करते हैं जैसे कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्साइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सो दैट इज़ अ मीडिएशन, ठीक है, कि दोनों पार्टी है, ये पार्टी और ये पार्टी है, दोनों के बीच में एक मीडिएटर भाई साहब है जो उसका समाधान करवाता है, ठीक है। सो दैट इज़ अ मीडिएशन। यहाँ पर भी देख सकते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड द मीडिएशन। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि कोई एक ऐसी बॉडी हो, ठीक है, जो दोनों के बीच में समाधान करवा सके, तो वो जो केसेस है कोर्ट तक पहुँचेंगे ही नहीं, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये काफ़ी हद तक यूजफुल है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी दोनों के साथ कम्युनिकेट करेगी, डिस्कस करेगी और उसी डिस्कशन के माध्यम के साथ जो है डिस्प्यूट वो रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो इट ऑफर्स टू रिजॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ द मैटर्स रिलेटेड टू द सिविल डिस्प्यूट्स एंड एक्सप्लिसिटी प्रोवाइडेड बाय द
लो ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अभी काउंसलिंग के बारे में बात करें, ठीक है, तो डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड एट द प्री लिटिगेशन स्टेज थ्रू द काउंसलिंग ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर यह समझ लीजिए कि हम काउंसलिंग के थ्रू भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द प्री लिटिगेशन स्टेज थ्रू द काउंसलिंग। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। अभी यहाँ पर देखिए, आई होप सो ये आर्टिकल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल। प्लीज वेट। प्लीज वेट। यस, अभी यहाँ पर देखिए हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल आया था, उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सोलार रूफटॉप के बारे में एक आर्टिकल आया था, ठीक है। सो ये जो चीज़ है वो क्या है, सोलार रूफटॉप है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं हम लोग कि रूफटॉप सोलार कैपेसिटी इंस्टॉलेशन जो है वो 29% के करीब डाउन हो गई है, डिक्रीज हो गई है 29% टू 320 मेगावाट इन जुलाई सितंबर, ठीक है। तो ये मैरकॉम रिपोर्ट जो है उन्होंने ये डेटा दिया है। इज क्लियर? आगे बात करते हैं उसके बारे में। सो रूफटॉप सोलार कैपेसिटी जो है भारत के अंदर इंस्टॉलेशन जब भी चल रहा है तो जुलाई और सितंबर 2022 के अंदर यहाँ पर 29% से घटकर वो 320 मेगावाट के करीब आ चुका है, ठीक है। तो ये जो चीज़ कही है, किसने कही है? अकॉर्डिंग टू दी मैक्रोन रिसर्च इंडिया के थ्रू ये चीज़ कहा गया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। व्हाट आर दी फाइंडिंग्स, ठीक है। फाइंडिंग्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है दोस्तों? सो पहली चीज़ यहाँ पर ये समझनी है कि क्यूमुलेटिव इंस्टॉलेशन, ठीक है, जहाँ पर हमें सोलर रूफटॉप जो है आरटीसी जो है इंस्टॉलेशन करना होगा, तो ऑलमोस्ट हमारी जो कैपेसिटी होगी वो 8.3 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। गुजरात जो है इसके अंदर सबसे लीडिंग स्टेट माना जा सकता है विद द हाईएस्ट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस, ओके, एंड फॉलोड बाय द महाराष्ट्र एंड द राजस्थान ऑल्सो। उसके बाद अगर बात करें कि द टॉप 10 स्टेट्स अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 73% ऑफ क्यूमुलेटिव रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 तरीके के जो टॉप स्टेट्स है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में यह बातचीत करते हैं कि ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 73% ऑफ क्यूमुलेटिव रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद डिक्लाइन इन इंस्टॉलेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जनवरी सितंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1.165 मेगावाट जो है वो घटकर 11% के करीब डाउन जा चुका है विद दी 1310 मेगावाट के करीब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये डिक्लाइन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि द कॉस्ट हैव राइजन, ठीक है। सोलर इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट है सबसे ज़्यादा पहले लगती है, इसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है इसको लगवाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बार जो लगवाते हैं तो कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाती है, ठीक है। द मार्केट इज़ स्ट्रगलिंग विद द सप्लाई इशू बिकॉज ऑफ अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। जिस तरीके का यहाँ पर अप्रूव्ड लिस्ट दिया जाता है उसके मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर आप लोगों को सप्लाई इशू देखने को मिल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इशू देखने को मिल सकता है। सो दैट इज कॉल्ड दी ALMM। इट्स for what? Approved list of module and manufacturers, okay, and installers are finding it a tough environment to operate in overall here, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ होनी होती है, ठीक है, whenever you read the current affairs also। अभी हम लोग रूफटॉप सोलर के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक फोटोवोल्टिक सिस्टम जो है उसको छत के ऊपर लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉमर्शियल बिल्डिंग या कोई भी ऐसा रेसिडेंशियल बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के ऊपर इसको हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। रूफटॉप जो है वो उसकी जो सिस्टम माउंट करने का यहाँ पर रीज़न यही है कि हम लोग वोल्टिक पावर स्टेशन इसके जनरेट करें, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरीके से जनरेट करें, कैपेसिटीज़ के हिसाब से यहाँ पर मेगावाट की रेंज को मैनेज कर पाए। सो दैट इज़ अबाउट द रूफटॉप सोलर, ओके।
अभी बात करते हैं रूफटॉप पीवी सिस्टम्स के बारे में। तो यहाँ पर रूफटॉप पीवी सिस्टम्स जो है काफ़ी हद तक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर इसको यूज़ किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी है 5 to 20 किलोवाट्स के करीब करीब, ठीक है। जो आपकी कॉमर्शियल बिल्डिंग की ऑलमोस्ट कैपेसिटी जो होती है, ठीक है, वो वहाँ पर पहुँचने की वो मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाए तो 100 किलोवाट्स के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर उसके चैलेंजेस के बारे में बात करूँ सो फ्लिप एंड फ्लॉपिंग पॉलिसीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो एक्चुअली ये फ्लिप और फ्लॉपिंग पॉलिसीज या है क्या, तो यहाँ पर जो भी कंपनीज हैं, ठीक है, वो सोलर एनर्जी है जिसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप जो सडन रियल और अपेरेंट चेंज इस पॉलिसी के अंदर लाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड दी फ्लिप फ्लॉपिंग पॉलिसीज़। ओके, तो इस तरीके की पॉलिसीज़ जो है काफ़ी हद तक माना जा सकता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है जिसको हम लोग डीकॉम्स कहती हैं, ठीक है, वो लाने वाली है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूटिव्स पॉइंट आउट RTS was becoming attractive to several consumer segments and when discoms over here, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की यहाँ पर काउंसिल बैठाई जाती है। रिसेंटली दिस पर्टिकुलर काउंसिल रिसेंटली हाइक्ड द GST ऑफ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम ओवर हियर, ठीक है। तो जिसका यहाँ पर आपको रेंज दिखाया गया है फ्रॉम 5% टू दी 12% के आसपास, ठीक है। सो इट विल इंक्रीज RTS कैपेसिटी कोस्ट बाय 4.5% ऑल्सो एवरेज। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझना है। आगे बातचीत करते हैं कि लो फाइनेंसिंग, ठीक है। यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो एक मिनिस्ट्री है उसने यहाँ पर एडवाइस तो किया है बैंक को, ठीक है, लोन्स के लिए, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री हैज़ एडवाइज्ड बैंक्स टू गिव लोन फॉर RTS का मतलब क्या है यहाँ पर हम लोगों ने भी समझा था, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट द RTS। अभी यहाँ पर देखिए, यस दिस वन, ठीक है। तो लो फाइनेंसिंग के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम लोग MNRE कहते हैं, उन्होंने इस तरीके की जो बैंक है वहाँ पर लोन के लिए एडवाइस किया है फॉर द RTC एट सब्सिडीज रेट। ओके, बाद में यहाँ पर आप लोगों को ये जानना है कि लोन फॉर RTC एट हायर रेट्स जो है ऑलमोस्ट 10 to 12% के आसपास रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑलमोस्ट डबल। ओके, आगे बातचीत करते हैं कि हम लोग सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग कौन कौन सी स्कीम लेकर आए हैं। तो जो फर्स्ट है रूफटॉप सोलर स्कीम, जिसके अंदर आप लोगों को सोलर पैनल्स को इंस्टॉलेशन करना होगा अपने घरों के ऊपर, जो छत रहता है, रूफ रहता है वहाँ पर, ठीक है। और उसके हिसाब से ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम के तहत यहाँ पर हमें सारी की सारी जो बिजली है उसका एम कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 40,000 मेगावाट फ्रॉम रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स बाय 2022, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोजेक्ट आता है, उनका नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ये क्या कवर करती है, सो दिस पर्टिकुलर स्कीम कवर्स ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्कीम्स है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए लागू की गई है, ठीक है। तो उनकी एज जो रहती होनी चाहिए वो 0.5 टू जो उसकी रेंज होनी चाहिए वो होगी 0.5 टू लेकर 2 मेगावाट के करीब करीब, जिसके अंदर सोलर वाटर पम्प, ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स जो है इस स्कीम के अंदर आते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम लोग ISA कहते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को याद रखना है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए कि जो भी टेक्निकल असिस्टेंस है उस प्रोग्राम के, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, रिगार्डिंग द टेक्निकल असिस्टेंस, तो यहाँ पर उसकी यहाँ एक बिठाई गई, एक हम लोग कह सकते हैं उन लोगों के साथ बातचीत किया गया कि ऑब्जेक्टिव्स इज टू एड इन डेवलपिंग अ होल वर्ल्ड ग्रिड थ्रू विच क्लीन एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड एनीवेयर एंड एनी टाइम, ठीक है। सो नेशनल सोलर मिशन, जिसको हम लोग कहते हैं अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर मैं आपके लिए पॉइंट्स जो है वो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से जो पॉइंट्स हमें IMP लगते हैं यहाँ पर मैं आपको बिल्डअप कर रहा हूँ। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर द न्यू फैमिली मेम्बर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फ्यूचर एंड फर्दर अपडेट्स। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। सो दोस्तों
नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट एज मोर कुकी चेन रेफ्यूजीज आर एक्सपेक्टेड टू एंटर मिजोरम। तो यहाँ पर एक्चुअली जो है वो न्यूज़ है तो है क्या, सबसे पहले वही देख लेते हैं, ठीक है। So 10 days after the first batch of over 270 Kukichin refugees crossed over to India fearing an attack from Bangladesh security forces, government officials estimate that 150 more refugees are expected to seek shelter in Mizoram in the next few days. Source said India and Bangladesh are aware of the unique seriousness of the issue and are in contact with to each other, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझनी है कि जो मेंबर्स है इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी फ्लेड बांग्लादेश फ्लोइंग क्राउड डाउन अगेंस्ट द कुकीचिन फाइटर्स, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा चीज़ें हैं वो बांग्लादेश से निकल कर यहाँ पर मिज़ोरम के अंदर आ चुके हैं, उसके बारे में यहाँ पर रेफ्यूजीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। सो कुकीचिन बांग्लादेशी रेफ्यूजी इश्यू, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे जो है बांग्लादेश से निकल कर आए हैं मिज़ोरम के अंदर, ठीक है। रिगार्डिंग दी हम लोग कह सकते हैं रेफ्यूजीज, ठीक है। क्या गाइज मुझे आप बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेफ्यूजी एंड दी माइग्रेंट्स, ओके। ये चीज़ आप लोगों को मुझे यहाँ पर बतानी होगी। आगे बात करते हैं कि न्यूज़ में जो आया था, ठीक है। तो मिज़ोरम कैबिनेट ने यहाँ पर टेम्पररी जो है एक शेल्टर बनाने की घोषणा कर दी है और चालू कर दिया है काम, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी एमिनिटीज़ है वो बांग्लादेश कुकीचिन रेफ्यूजीज़ के लिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मिज़ोरम जो है उसकी अगर मैं बात करूँ, सो मिज़ोरम शेयर्स दी 318 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर विथ बांग्लादेश, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मिज़ोरम जो है उसकी अगर हम लोग वहाँ पर फिर से बातचीत करें तो दैट इज मिज़ोरम इज़ रेडी शेल्टरिंग ओवर द 30,000 रेफ्यूजीज़ फ्रॉम द म्यांमार, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि ये जो है वो आए थे, कहाँ से आए थे, ठीक है। सो हु साउथ रेफ्यूजी इन द स्टेट आफ्टर मिलिट्री कॉप इन द साउथ ईस्ट एशियन नेशन इन फेब लास्ट ईयर। अभी अब अबाउट कुकीचिन रेफ्यूजीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो कुकीचिन जो है ये इथनिक टाइप से बिलोंग करते हैं या उसको मिज़ोज जो है उससे हम लोग शेयर करते हैं। दे फ्लेड देयर होम्स फॉलोइंगली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द बांग्लादेश आर्मी एंड एन एथनिक इंसर्जेंट ग्रुप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काकी चीन नेशनल आर्मी, जिसको हम लोग कहते हैं KNA, ठीक है। उसके बाद भारत का क्या स्टैंड रहेगा रेफ्यूजीज़ के हिसाब से वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 1951 के अंदर जो UN कन्वेंशन था उसके हिसाब से ये इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी over here, ठीक है। relating to what, relating to status of refugees and the 1967 protocol, okay. So all foreigner under documents nationals are governed as per the provisions of the Frontier Act of 1946, okay। तो ये जो सारे के सारे एक्ट है दोस्तों आप लोगों को याद रखने होंगे और उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी होगी। जब भी आप UPSC मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो इसी फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को लिखना होता है, ठीक है, विद इन दी 250 वर्ड्स, ओके। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ है जिसको हम लोग कुकीचिन मिज़ो कम्युनिटी कहते हैं वो ऑलमोस्ट 200 के ऊपर की यहाँ पर कम्युनिटीज़ जो है बिलोंग करती हैं, यानी कि उसके लोग बिलोंग करते हैं जो बांग्लादेश से चित्तगोंग हिल ट्रैक से आए हैं। इट स्टैंड्स फॉर दी CST, ओके। ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। सो दिस पर्सन they person have entered Mizoram's long लाई डिस्ट्रिक्ट ओवर हियर, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा इसका डिफ़िकल्ट नेम है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरीके से करिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए दे हैव ऑल्सो एंटर्ड द मिज़ोरम इलीगल ड्यू टू दिस पर्टिकुलर आर्म कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जिसके नेबर कंट्रीज़ के साथ होता रहता है, ठीक है, आर्मी एंड एथनिक आर्म्ड ग्रुप के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो रैपिड एक्शन बटालियन हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में ये अच्छी तरीके से इंसर्जेंट किया और इस ग्रुप को अच्छी तरीके से यहाँ पर
सारी की चीज़ों के बारे में समझाया, ठीक है। सो द मैटर हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड विद द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। अभी भारत के अंदर जो भी रेफ्यूजीज़ है उसके बारे में अगर बातचीत करें तो UNHCR, ठीक है, तो UNHCR के हिसाब से जो भी डेटाबेस आया था उसके हिसाब से आप लोगों को 2.44 लैक्स जो है रेफ्यूजीज अगले साल थे, तो इस बार सबसे ज़्यादा ही होंगे, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ सो 2,03,235 रेफ्यूजीज आर फ्रॉम श्रीलंका एंड तिब्बत एंड श्रीलंका एंड तिब्बत एंड 40.859 रेफ्यूजीज आर फॉर द असाइलम सीकर्स ऑफ अदर नेशनैलिटीज़ ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है, ओके। आगे बात करते हैं कि भारत का क्या क्या एक्सपेंसेस है। सो इंडिया एंश्योर दैट द रेफ्यूजीज कैन प्रोटेक्शन सर्विस दैट आर ऑन अ पार्ट विद देयर फेलो इंडियन फोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ये मैटर ही नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कोई ऐसा कह सकते हैं गवर्नमेंट का कोई भी काम करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको एक हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडिया का जो भी रिस्पॉन्स था उसके हिसाब से यहाँ पर हमें एक फाइनेंशियल इंक्लूजन या इकोनॉमिक इंक्लूजन जिसको हम लोग कह सकते हैं वो चाहिए रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट द इंडियाज़ रिस्पॉन्स। आगे बात करते हैं कि उसके क्या क्या लॉज और रूल्स रेगुलेशंस है जो डील करते हैं रेफ्यूजीज़ के साथ, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया डज़ नॉट हैव एनी नेशनल पॉलिसी और लॉ टू डील विद द रेफ्यूजीज़, ठीक है। 1951 यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो भी कन्वेंशन प्रोग्राम था या 1967 के अंदर जो भी प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से इस तरीके के लॉ को यहाँ पर सिग्नेटरी कर दिया गया एंड बाद में जो भी इंटरनेशनल लॉ जो आया वो आप लोगों को अच्छी तरीके से जानना होता है, ठीक है। सो इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल लॉ सच एज द 1951 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन एंड द 1967 प्रोटोकॉल, ओके। आगे बात करते हैं कि इंडिया डज नॉट नॉलेज द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ एन UNHRC, UNHCR, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। सो विद इन इट्स टेरिटरी चूज टू हैंडल रेफ्यूजी क्राइसिस अनइलिटरली, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। आगे बात करते हैं इफ़ एनी आर्टिकल ओवर हियर, ठीक है। अदरवाइज आज के आर्टिकल जो है समाप्त हो चुके हैं। अभी यहाँ पर एक आर्टिकल जो आया है वो एक एक्सरसाइज से हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। युद्ध अभ्यास अमंग 5 ओवर बायलैटरल आर्मी ड्रिल्स ऑन, ठीक है। सो the Indian Army is recently engaged in bilateral exercise with the 5 countries underway both inside and outside the country meant to improve interoperability with the 18th edition of India US Army exercise जिसको हम लोग युद्ध अभ्यास कहते हैं, जिसके अंदर उत्तराखंड के उलई जो है उस उत्तराखंड के अंदर वहाँ पर एक्सरसाइज होगी जिसके अंदर ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की जो है एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहाँ से निकल कर आएगी, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। अभी यहाँ पर दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बातचीत की जाए तो ऑस्ट्राहिंद, ठीक है, जो एक ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज किया था उसके बाद नवंबर 28 से लेकर 11 दिसंबर तक, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने देखी ही होगी। एंड एक्स अग्नि वॉरियर जो है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये उनका नाम भी आप लोगों को याद रखना है, एक्स अग्नि वॉरियर, ठीक है। विथ सिंगापुर टू डिलोली फ्रॉम नवंबर 13 टू दिसंबर 3, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखिए कि ये एक्स हरिमऊ शक्ति विथ मलेशिया फ्रॉम नवंबर 28 टू 12 दिसंबर, जिसको हम लोग एक्स गरुड़ा शक्ति या इंडोनेशिया के हिसाब से उसको जानते हैं, ठीक है, एक्स गरुड़ा शक्ति के हिसाब से। तो यहाँ पर जो सारी की सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े हैं, आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें याद गई होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन नेवी INET, एयरफोर्स ग्रुप X and Y, टेरिटोरियल आर्मी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन लाइक द IBPS क्लर्क, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B. So don't worry, batches launched by the Yes Sampat educators. What are you waiting for, guys? Just call on 977-323
6030619, and you can just follow me in the Instagram, in the YouTube, and in the Facebook also. And you can also enroll in this kind of the particular courses, and online platform is available over here. Is it clear? So that's it for this particular article. I want to tell you that if you are the new family member of this channel, so guys, please subscribe this channel for the future and further updates. Is it clear? And I want to also tell you that if you really enjoy this session, so please guys, share the session with your friends, family members, and colleagues also. Okay, let us move on the next lecture. So we will meet in the next lecture. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. जय हिंद, जय भारत. Thank you and bye bye.